Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so our today's topic is weather hazard. In weather hazard, we will discuss about the flood and causes of floods, which is very important in our syllabus point of view. And you as much all aware that we had already seen that weather hazards and drought management, and what is the drought, causes of the drought, effects of the droughts in our agriculture production also. So in this lecture we will discuss about the causes of flood, basically what is the flood and how floods are formed, or how floods may occur, the our atmosphere also. Okay, so let us see what is that. And बेसिकली पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, या एक वन वर्ड में हम फ्लड को कैसे डिफाइन करेंगे. सो अ फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई. ठीक है, सो जब एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, एक सब्सिक्वेंट अमाउंट में नहीं. सो वी कैन से दैट द एक्सेस अमाउंट फ्लो ऑफ वाटर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी नो दैट इट इज़ अ फ्लड, वी कैन से. Okay, so in the sense of flowing water, the word may also be applied to the inflow of the tide. Okay, so floods are an area of study of the discipline hydrology and are of significant concern in agriculture, civil engineering and public health. Okay, so this is the flood. We can say that the large amount of water, or large amount, a number of water, especially when moving one place to another place, is known as flood. Okay, so in simple word में कैसे कह सकते हैं कि excess amount of water which flow one place to another place we call flood. Okay, so there are some causes of flood. So we, as you can see, that flood is usually a result of natural causes, because of the flood is a very natural disaster or weather hazards. हम कह सकते हैं कि flood एक ऐसा फिनोमिना है जो एक नेचुरल वे में फॉर्म होता है. ठीक है, सो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है. सो इट मे ऑल्सो बी कॉज बाई मैन मेड फैक्टर. ठीक है, सो कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब हम जो डैम्स वगैरह होते हैं, है ना, तो डैम्स होते हैं या पोन्ड्स वगैरह होते हैं, उनके गेट्स होते हैं. ठीक है, जो ड्रेन गेट्स होते हैं वो हम अगर वो ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो कई बार फ्लड जैसे सिचुएशन आ जाते हैं. तो समटाइम इट विल बी, it will be very dangerous for our public sector and agriculture production also, we can say that. So it causes huge damage of life and property also. So there are many different causes leading to flooding, some prominent among that included. Okay, so there are some massive rainfall. So basically the flood is a natural disaster which is causes by the natural atmosphere and weather, different weather phenomena. ठीक है, सो बट समटाइम जो फ्लड होता है वो हमारे द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी कराया जाता है. समटाइम हम अभी किसी क्रॉप पे फ्लडिंग करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लडिंग या फ्लड. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट very dangerous, or as compared to natural flood, we can say that. So massive rainfall is a very important factor for the flood phenomena. So drainage system and the effective infrastructure design during high rains. ठीक है, so ये जो डैम्स वगैरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो ड्रेनेज के जो सिस्टम्स जो बनाया हुआ होता है किसी भी पॉन्ड, रिवर या डैम पे, तो वो जो है एक हैवी रेन को होल्ड करने में, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो वो एक मैसिव रेनफॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम तैयार करना पड़ता है, या करना चाहिए हमें. वी शुड ready for the flood damage weather disaster, we can say that. So एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसे तैयार करना होता है जिससे हम हैवी रेनफॉल से बच सके. ठीक है, सो दे हैव द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर इन रिजर्वॉयर in an easy way, but in case of heavy rainfall the system stop working.
ठीक है। सो दस फ्लड इज कॉज्ड। सो बेसिकली क्या होता है, जो डैम वगैरह बनाते हैं या पोंड बनाते हैं, ठीक है, रिजर्वोयर जो हम वाटर रिसोर्सेज जो हम अपने आर्टिफिशियल जो हम अपने हमारे जो एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ में हम डेवलप करते हैं, वो क्या होता है कहीं ना कहीं जो है जो एक्सेस वाटर है फ्रॉम दी रेनफॉल, ठीक है, सो उसको हम कहीं ना कहीं क्या मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो हम वो मैनेज करने के लिए ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो हम रेडी करते हैं। बट कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाने की वजह से ह्यूज डैमेज हो जाता है, और जो सिस्टम हमने रेडी करा हुआ होता है, ठीक है, जो कि डैम या पॉन्ड वगैरह में जो हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता है, गेट लगाया होता है पानी को होल्ड करने के लिए, ताकि वो पब्लिकली जो है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे, ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है तो वो वर्क करना बंद कर देते हैं। ओके, सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर है फ्लड के कॉज होने का, ठीक है। एंड द सेकेंड फैक्टर इज ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स। सो जब बहुत ज़्यादा हमने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया हुआ है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में, डेम्स वगैरह में हमने वाटर को होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो जब क्या होता है जब उस पर्टिकुलर एक सिस्टम से जब ओवरफ्लोइंग होने लगती है वाटर की, ओवरफ्लो करने लगता है वाटर, फिर वो क्या करता है वो जो है वो रोड साइड में आता है, और वो जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उसको आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है, तब उस सिचुएशंस पे फ्लड कॉज करता है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि वो जो फ्लड है वो मैन मेड फ्लड है, ठीक है, क्योंकि हमने वो क्या किया, ओवरफ्लो को हम क्या करें होल्ड नहीं कर पाए, या उस वाटर सिस्टम को हम कहीं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए किसी और तरीके से, ठीक है, तो वो एक सिस्टम होता है। द पीपल लिविंग अलॉन्ग द रिवर always have a risk of life from the overflowing of the rivers. To prevent such a situation, a string of dams are built. However, if these dams are not managed properly, they may cause flooding and huge damage. जैसे मैंने बताया कि अगर प्रॉपरली हम उसके गेट्स वगैरह के मैनेजमेंट नहीं करते, सिस्टम हम ऑर्गेनाइज तरीके से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हमें जो है वो फ्लड दिखाई पड़ता है, और विच इज़ ऑल्सो known as flood by man made, we can say that. Okay, then collapse the dams, ठीक है, तो कोई भी हम जब सिस्टम रेडी करते हैं, ठीक है, रेनफॉल वाटर को होल्ड कराने के लिए, तो उस सिस्टम का क्या करना होता है, हमें उस सिस्टम को टाइम पे मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है, तो ताकि वो कोलैप्स ना करें। तो कई बार आप देखेंगे कि बहुत ही पुराना हो गया है डैम, या ड्रेनेज जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, या जो उसका आउटलेट इनलेट जो गेट्स बने हुए होते हैं डैम में, बेसिकली डैम वगैरह में आप देखेंगे कि एक आउटलेट और एक इनलेट जो है गेट्स बना होता है, जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है वाटर का, ठीक है, तो हम उस गेट को ओपन करते हैं ताकि जो वाटर है वो बैलेंस्ड रहे दोनों साइड पे, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसको हम मेंटेन करते हैं ताकि कोलैप्स ना हो। तो एक ये रीज़न भी है कि डैम के कोलैप्स होने की वजह से भी फ्लड जो है वो सिटी वगैरह में कॉज होता है, और वो ह्यूज डैमेज करता है हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, बहुत सारी चीज़ों को जो है जो फ्लड है वो हार्म करता है। ओके, सो इन द इवेंट ऑफ huge rainfall, the dams will begin to collapse, thus causing the flood situation to become even critical of the people living around. And then the second factor is snow melt, ठीक है, जब ग्लेशियर वगैरह में जब स्नो जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस है कि जब टेम्परेचर वहाँ पे का इंक्रीज होगा ग्लेशियर वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आइस हैं, ठीक है, स्नो बॉल्स हैं, स्नो क्रिस्टल्स हैं, वो क्या होंगे, मेल्ट डाउन होने लग जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जब मेल्ट डाउन हो जाते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी को, हमारे आवागमन के जो साधन होते हैं उनको। Okay, so at the time of the high melting of snow due to heavy precipitation and other factors, the situation of flooding rises. Okay, adopting sustainable measures for heavy precipitations can help in dealing with the flooding situation.
ओके। सो हम प्रेसिपिटेशन को मेंटेन करके, ठीक है, हम प्रेसिपिटेशन को मेंटेन कैसे करेंगे, वेदर को हम हार्मफुल नहीं करें, एटमॉस्फेयर से हम छेड़छाड़ नहीं करें, ताकि नेचुरली जो प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होते हैं उसका जो साइकिल होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और हार्म ना हो, ठीक है। और जब ये हार्म नहीं होगा हमारा, तो क्या होगा, आर्टिफिशियली, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल फ्लड होगा, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रेसिपिटेशन या नेचुरली प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन के प्रोसेस को हम हार्म नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, एक साइकिल चलता होगा और सब कुछ क्या होगा, मेंटेन रहेगा। एंड द डिफॉरेस्टेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉजिंग फ्लड, वी कैन से दैट, ठीक है। क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन जो है, जो हम पौधों को काट रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सो उसकी वजह से भी फ्लड कॉज होता है। प्रेसिपिटेशंस, रेनफॉल, सब सारा जो वेदर फिनोमिना है वो इफ़ेक्टेड होता है डिफॉरेस्टेशन से, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिस्क हम कह सकते हैं जो फैक्टर है, जो वो है डिफॉरेस्ट्रेशन। सो द कटिंग ऑफ द ट्री इन अ रेकलेस मैनर, दैट इज डिफॉरेस्ट्रेशन, इज ऑल्सो अ मैनर कॉज ऑफ मैन मेड फ्लडिंग. Trees prevent soil erosion and also the loss of crops. The vegetation is also enriched as a result of more and more trees. This also blocks the massive flow of rain, thus preventing flooding. ठीक है। सो हम अगर ट्रीज़ अगर हैं, ठीक है, तो वो सॉइल इरोजन को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। जब बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है तो हमारी जितनी फर्टाइल सॉइल हो जाती है वो क्या होता है, इरोजन हो जाता है उसमें, ठीक है, फर्टाइल सॉइल बह के चली जाती है, रन ऑफ हो जाता है वाटर का, तो वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन जो है इसको हम प्रिवेंट करके वेजिटेशन लगा के भी हम फ्लड को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हैं, अगर इन कॉजेज़ को हम मेंटेन करें, ठीक है, चाहे वो कोलैप्स हो डैम का, या ओवरफ्लो हो रिवर का, या डिफॉरेस्ट्रेशन हो, कोई सा भी कॉज है, ठीक है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, तब हमारे जो फ्लड्स हैं, जो वेदर हज़ार्ड्स हैं, जो नेचुरली या आर्टिफिशियली मैन मेड के साइड से जो फॉर्म होता है वो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस ऑल्सो ब्लॉक्स द मैसिव फ्लो ऑफ रन, thus preventing flooding. Then the climate change. The climatic changes causes due to human practices also add to the risk of flooding. Human beings cut trees in a large number, thus affecting the process of photosynthesis. Thus increased level of carbon dioxide in the atmosphere causes changes in climate, posing threats of natural disaster like flood and drought etc. ओके, सो एक क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम कह सकते हैं. बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है. जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सारी प्रेसिपिटेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो जो है वो इफ़ेक्ट होंगे. रेनफॉल ज़्यादा होगा तो फिर ये नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो हमें फ्लड जैसे सिचुएशन जो है हमें नेचुरल डिज़ास्टर का वो देखने को मिलेगा, ठीक है. तो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं थ्रू दी ह्यूमन बींग्स, जो हम अपने अफेक्ट कर रहे हैं या हम हार्म कर रहे हैं क्लाइमेट को अपने, ठीक है, ड्यू टू दी अवर डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट कर रहे हैं. तो ये सारे जो चेंजेस हैं एटमॉस्फेयर में, जो नेचुरल जो फिनोमिना है, उससे अलग हम जो ह्यूमन अपने अपने रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का जो हम हार्मफुली यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लड कॉज होता है. देन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैसेज से मीथेन जैसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो गैस है वो
इंक्रीज होता है, तो इस वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है. सो द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस द पॉल्यूशन ऑल इज डिप्लीशन द लेवल ऑफ ओजोन लेयर एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बिकमिंग अ मेजर कॉज ऑफ मैन मेड फ्लडिंग. ठीक है, तो हम जो ग्रीन हाउसेस यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के गैसेस वहाँ से फॉर्म हो रहे हैं. बेसिकली मीथेन गैसेस वहाँ जो हैं वो फॉर्म होते हैं. जो हम जो हम अपने साधन यूज़ करते हैं, कार वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करता है. इसके अलावा हम रेफ्रिजरेटर और एसी एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिससे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरो कार्बन जैसे गैसेस वहाँ से निकलते हैं. ठीक है, तो वो सारे जो गैसेस हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो अफेक्टेड होती है और रेनफॉल ज़्यादा होता है, स्नो मेल्ट हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से. तो ये सारे कॉजेज़ हैं या ये सारे कारण हैं या ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर को, फ्लड जैसे डिज़ास्टर को क्या करते हैं, कॉज करते हैं. एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज देयर आर डिफरेंट एंड अदर फैक्टर्स विच आर ऑल्सो कॉज द फ्लड, वी कैन से दैट. सो दे आर द ब्रोकन सप्लाई लाइन्स causes the outflow of water but lead to less damage. Also, there is water flow from the washing machines. Further, more overflow from dishwasher worsen the situation. Also, the lack of proper sewage system adds to the destruction in the natural disaster. So, ये सारे जो हमारे जो डेली यूज़ में आने वाले जो हमारे मशीनरीज़ हैं, जो हमारे लग्जरीज मशीन हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे गैसेस फॉर्म होते हैं, सीवेज का प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, तो इन सब की वजह से भी ये एक अनदर फैक्टर है, ये जो फ्लड जैसे सिचुएशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं. दस अ फ्लड कैन बी कॉज बोथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एज वेल एज इट कैन बी ह्यूमन मेड फ्लड. ठीक है, तो ये नेचुरल कॉजेज़ के अलावा भी ह्यूमन बींग के द्वारा या हमारे द्वारा जो फ्लड कॉज करने का क्या करते हैं, हम पिन करते हैं. ठीक है, कि हम जो अपने वेदर को है या हमारे जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, हम उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो ये डिज़ास्टर है वो फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो फ्लड कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. वाटर बोर्न डिसीज स्प्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके, सो ये बहुत सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जो वाटर बोर्न होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे होते हैं, एज सच हमारे प्लांट्स पे भी बहुत सारा हार्मफुल होता है. ठीक है, तो ये जो गलने लगते हैं पौधे जो हैं हमारे, रूट रॉटिंग जैसे सिस्टम, फ्लड की वजह से रूट रॉट कॉज हो जाता है हमारे जैसे शुगर केन वगैरह के क्रॉप पे. तो ये सारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं. मोर ओवर, इनके अलावा द डिस्ट्रक्ट्स ऑफ रोडवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, द डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम, इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स, ऑल डिमांड्स सीरियस एफर्ट्स ऑफ अडॉप्टिंग सस्टेनेबल मेजर्स. ठीक है, तो ये सारे इकोसिस्टम जो है, जो बेसिकली जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो डिज़ास्टर्स हैं, ड्रॉट है, फ्लड है, लैंडस्लाइड्स है, साइक्लोन्स है, ये हमारे द्वारा भी फॉर्म किए जाते हैं. कहीं ना कहीं समवेयर हम क्या करते हैं, अपने लग्जरीज का यूज़ करके, मशीनरीज का यूज़ करके हम एटमॉस्फेयर को, वेदर को पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, पॉल्यूटेड वेदर में रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो जाता है, कंडेंसेशन जो है रिड्यूस हो जाता है. तो इन सारे इन सारे सिचुएशन की वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो फॉर्म होता है. ओके, सो ये आज हमने देखा कि फ्लड
क्या होता है और किन किन कारणों से फ्लड जो है नेचुरली या ह्यूमन मेड फ्लड जो है वो कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस किस प्रकार का, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फ्लड्स हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के मेजर टाइप्स है फ्लड्स के और वो किस तरीके का है, किस जगह पे वो हार्मफुल अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टडी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ।